میں ایک شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہے. 2-3 دن پہلے تقریباً 23 تاریخ سے 25 تاریخ وہاں ایک میلہ بھی رہا. وہاں میں خود گیا تھا. میں نے بہت ساری کمیاں پائی وہاں پہ. وہاں واش رومز کا بھی مسئلہ ہے, وہاں لوگوں زائرین کے بیٹھنے کے لیے بھی مسئلہ ہے. اس پہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے لفظ وقف جو درگاہوں سے پیسہ آتا ہے, جو واقعی یہ جاتا کہاں ہے. الحمدللہ پچھلے 2 سال سے ہم نے اگر کسی کو دکان رینٹ پہ دیا ہے, ہم نے نئے سرے سے کوئی بھی چھاپڑی دی ہے, ہم نے باضابطہ ایک پریمیم لیا ہے. باضابطہ. السلام علیکم, میں ہوں توصیف ہمدانی کے کے اس خصوصی شمارے کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہم ڈاکٹر درخشاں اندرابی جی سے ملنے آئے ہیں اور ان سے سیاسی بات کو چھوڑ کر عوامی بات کرنے آئے ہیں, کیونکہ تقریباً 2 سال مکمل ہوئے ان کے اب اس پورٹ فولیو کو بحث چیئر پرسن وقف بورڈ. کیونکہ جب بی جے پی برسر اقتدار آئی مرکز میں, اس کے بعد جو جموں کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ بہت ساری تبدیلیاں آئیں, اور آرٹیکل 370 کے جانے کے بعد ایک الگ طرح کا نظام یہاں پہ آیا, اور جس میں کہیں نہ کہیں پہ بقول بی جے پی عوام دوست حکومت آئی ہے. جو وقف بورڈ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو مذہبی معاملات کو ساتھ ساتھ ایک کہیں نہ کہیں پہ ایک ریونیو کا بھی مسئلہ ہے. تو ہم آج ان تمام چیزوں پر بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ وقف بورڈ کام کرتا ہے, اور میم نے اپنے دور میں کس طرح سے اس میں جو بہتری لائی ہے, کہاں کہاں پہ کمیاں پائی گئی تھی, اور جب یہ پہلے آئی تو اس وقت کیسے حالات تھے اور آج کیسے حالات ہیں. درخشاں اندرابی جی, آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے ہمیں سمے دینے کے لیے. شکریہ آپ کا. میں آپ کے ذریعے سے تمام یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں, اور آپ کو. میم, بحث ذمہ دار وقف بورڈ, میں آپ کو وہ پورٹ فولیو سائڈ میں رکھ کر عوامی معاملات کو دیکھتے ہوئے, جب آپ پہلے جوائن کیا تو کیسے ماحول تھا یہاں پہ, اور پہلے کہاں سے شروع کیا؟ جب ہم نے یہاں پر ایز اے چیئر پرسن جوائن کیا وقت میں, تو وقف ادارہ جموں کشمیر وقف بورڈ بن گیا, کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر کشمیر کا یونٹ الگ ہوتا تھا اوقاف اسلامیہ کے نام سے, اور جموں پروونس کا کونسل کے نام سے. اور وہاں پہ پریشانی جموں میں یہ بھی ہے کہ وہاں جموں ڈسٹرکٹ کو دیکھا جاتا ہے, باقی جتنے ڈسٹرکٹس ہیں, چاہے ہمارے 9 ڈسٹرکٹس ہیں, ان کو اگنور کیا گیا ہے. اگنور ان دا سینس کہ ان کو اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہے, جو کہ ابھی تک بھی کوشش کرنے کے باوجود میں نے اپنے افسران سے میٹنگز کر کے اب ان کو ہم ایک لائن پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ کہیں پہ جاتے ہیں کسی بھی ادارے میں, یا تو سموتھ آپ کے پاس سب کچھ ہو جس کو آپ نے جا کے کرسی پہ بیٹھنا ہے اور کام چلانا ہے, لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ملا بہت اچھا ملا, لیکن سموتھ نہیں ملا. یہاں پہ کافی ہرڈلز تھی, اور یہ وہ ادارہ ہے جہاں ہم جتنا بھی کام کریں اتنا کم ہے. لیکن وقف کو ایز کیا ہم کہیں گے گھر کی کہانی لی گئی تھی یہاں پہ. جیسے کہ آپ چیئر پرسن ہیں, ایز اے چیف منسٹر یہاں پہ سارے ہی چیئر پرسن رہے ہیں ہم سے پہلے, یا کیبنٹ منسٹر ہی یہاں پہ اس کو دیکھ ریکھ کرتے تھے. وہ سیکریٹریٹس میں بیٹھتے تھے جہاں آپ ابھی یہ بیٹھے ہیں. یہ وقف کا آفس نیا ہے, بڑی مشکلوں کے بعد یہ ہم نے بنایا ہے. یہ جو آج بلڈنگ ہے, یہ سارا آفس وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں, وقف کا آفس چیئر پرسن کا یا کہیں پہ بھی آفس نہیں تھا. بٹ ہرڈلز تھی, لیکن کوشش ہم نے کی کہ ان کو سموتھ کرنے کی, اور خزانے میں بھی یہاں کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت اور اس وقت کے خزانے میں کیا فرق ہے؟ الحمدللہ آج اللہ کی برکت ہے, رحمت ہے, اور جب اللہ کی برکت ہوتی ہے تو وہ برکت کبھی کم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ جس برکت میں اللہ کی شان اور ایمانداری اور پاکیزگی شامل ہوتی ہے وہ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. عوامی سطح پہ یہ آپ کے جو سیاسی حریف ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سختیاں برتی ہے, انہوں نے عوام کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو تھوڑا ڈیفائن کرے, آپ کیا چاہتے تھے اور عوام اس کو کیا سمجھتی ہے؟
جہاں تک عوام کی بات ہے اور جہاں تک ہمارے سیاسی حریف کی بات ہے، سبھی حریفوں کی بات ہے، ناٹ اونلی حریف چھوٹا لفظ ہے، حریفوں کی بات ہے، وہاں ان کو لگا کہ جو صوفیہ یا جن کو وہ صوفی بزرگ مانتے ہیں اور وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، جو لوگ وہاں درگاہوں پہ بیٹھے تھے، آپ کا اشارہ وہی ہے کہ ہم نے تو تنگیاں وہاں سختیاں برتی، عوام کو تو تکلیف سے ہم نے بچایا۔ جو عوام آپ ہے، آپ کو ہم ایک چھوٹی مثال دے دیں گے، آپ تجر شریف میں بھی جاتے ہیں، مقدم صاحب کے یہاں رحمت اللہ کے درگاہ میں بھی جاتے تھے، دستگیر صاحب کے درگاہ میں بھی جاتے تھے، ہمارے شریف جاتے تھے، باقی اشمقام وغیرہ جہاں پہ سو کالڈ رشیز بیٹھتے تھے، اور جب آپ اور ہم جاتے تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم خود کو بچا بچا کے واپس لاتے تھے، خود کو بچا بچا کر واپس لانا بڑا محال ہوتا تھا زندگی کا، کیونکہ جو زائرین وہاں پہ جاتے تھے ان کے کپڑے، ان کی جامہ تلاشی لی جاتی تھی، تو لوگ بیزار ہو چکے تھے درگاہوں پہ جانے سے۔ آپ کا یہ کہنا کہ صوفی عقیدے کو نقصان پہنچتا تھا وہاں؟ لازمی ہے، آپ دیکھیے کرام کو ماننے والے ہیں، سنت کو تو ماننے والے ہر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے اور ہیں بھی ماشاء اللہ، بٹ درگاہوں سے جن کی وابستگی ہے ان کو بھی اپنی جگہ یہ لگتا تھا کہ اب تو درگاہوں پہ تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے، اور باقی جو ہمارے بہت سارے عالم تھے وہ تنز کستے تھے درگاہ والوں پہ، اسی لیے کستے تھے کیونکہ وہاں پہ واقعی میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ مرد و زن کی تلاشی لیتے تھے، اور نظر و نیاز کے نام پہ بہت ساری بے حرمتی وہاں پہ ہو جاتی تھی، اس سے ہمارے عقیدے کو زخم پہنچ رہا تھا، جس پہ واولہ تو بہت ہو گیا، لیکن جو عوام ہے، جو عالم ہے، عالم دین ہے، انہوں نے بہت جلد اس چیز کو مانا، اور ان کو یہ دل میں ایک یقین ہوا کہ اصل میں جو صوفیہ کرام کی درگاہیں ہیں، اولیاءوں کی رحمت اللہ علیہ کی درگاہیں ہیں، وہاں تو نور برستا ہے، جب ایک بندہ وہاں پہ جاتا ہے اس کو روح کو تسکین ملتی ہے، اور اس روح کو کیسے تسکین ملے گی جب وہ وہاں عبادت بڑے سکون سے کرے گا۔ اسی لیے جو ہم نے وہ پہلے قدم اٹھایا، پولیٹیشنز کا کام ہی ہوتا ہے جو اپوزیشن میں ہے واویلا کرنا، چاہے وہ اچھا کام ہو، اگر برا ہے تو اس پہ ترا، کہ پھر تو اس پہ تو کوئی چپ بیٹھنے والا نہیں۔ الحمدللہ یہ بہت اچھا کام تھا جس کو 99% لوگوں نے سراہا۔ جو یہاں کے وقف کے ملازمین ہیں اس کو لائن اپ کیسے کیا؟ فی الحال کے لیے جو سننے میں آیا ہے کہ آپ نے امام پھر نائب امام ایک لائن اپ کر دیا ہے، اور کیسے اس کو دیکھتے ہو؟ کیا کہیں جو پہلے آپ سے پہلے سسٹم تھا کیا وہ منظم نہیں تھا جو آپ نے اب کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ دیکھیے، ہر ایک نظام کو منظم ہونا بہت لازمی ہوتا ہے، یہ ایک دینی ادارہ ہے اور اس میں دینی ادارے کی طرف ہر ایک کی نظر رہتی ہے، اور اس کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہیں گے تو پریشانیاں بنتی رہیں گی۔ منظم ہم نے آپ سے کہا کہ یہ 2 ادارے ہوا کرتے تھے، جموں کشمیر وقف بورڈ تو یہ 2022 میں بنا، اب جموں کشمیر میں ایک ہی رول عائد ہے، اب جو یہاں پہ ملازم ہے وہ جموں بھی جا سکتا ہے، پہلے تو کچھ الگ کہانی تھی، کشتواڑ کا کشتواڑ کی کہانی سناتا ہے، ڈوڈا کا ڈوڈا کی کہانی ہے ہی نہیں، ڈوڈا کا ابھی ہم نے وقف ڈھونڈا، میرے ٹائم پہ نہیں تھا وہاں پہ، ہم جب پوچھتے تھے تو وہاں پہ کوئی تھا نہیں، تو نہ زمینیں تھی کہیں پہ، تو ابھی الحمدللہ وہ سارا کچھ آ گیا ہے۔ کشتواڑ کا بھی مسئلہ بہت بڑا تھا، ابھی وہاں پہ بھی جو اپنے ملازم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم الگ دنیا میں ہیں، تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ ایسا تھا جس کو الگ الگ کہانیوں سے جوڑا جاتا تھا، آپ کو مرضی تھی، آپ منسٹر تھے تو آپ نے اپنے لوگ وہاں پہ لگائے ہیں۔ ان 2 سالوں میں الحمدللہ جو پرانے ہی ملازم تھے، اتنی کثیر ملازموں کی تھی
कसरत थी कि हमने उनसे ही काम लिया और वही काम कर रहे हैं। हमने आते ही कोई मुलाजिम नहीं लगाया, यहाँ पे कोई भर्ती नहीं हुई। इसको रिक्रूटमेंट बोर्ड कहा जाता था, और जो भी आपके घर में काम करता था तो उसको आपने यहाँ पे मुलाजिम लगाया। अब आपने सवाल खुल के पूछा तो हमें भी खुल के जवाब देने, लोगों को, आवाम को मालूम होना चाहिए ये जो पैसा है ये कहाँ जाता था। मैं आपको पार्सल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब से आपने जिम्मेदारी ली है जमीनी सतह पे, कहीं ना कहीं पे जो हम आवाम के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपके काम की पजीराई हुई, लेकिन आपकी भी अब सियासी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब सियासत से भी वाबस्ता हो। सियासी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि आपका सियासी गरीब भी है, तो वक्त के मुलाजिम सरकारी जो ये एक इल्जाम था कि जो हमारे सियासतदान के घरों में काम करते हैं, आपने इसको कैसे पाया? क्या वो अभी स्ट्रीमलाइन हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मुलाजिम 24/7 काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने वक्त को, क्योंकि अकेले दरख्शां कुछ नहीं कर सकती जबकि उसकी टीम मुतहरिक ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी टीम, चाहे वो छोटे मुलाजिम हैं या बड़े मुलाजिम, अफसरान तो सरकार हमें देते हैं, हमारे टाइम पे सरकार के ही केस ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़े ईमानदार काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो छोटे लेवल के भी यहाँ पे जितने भी हमारे इस यूनिट में, कश्मीर प्रोविंस में जितने भी हमारे लोग हैं जम्मू में, तो सबों ने कमर कस लिया और काम किया। तो तभी जो हमने जो ऑर्डर्स निकले, जो हमने काम सोचा, जहन में सोचा, चाहे इंजीनियरिंग विंग है कोई भी नहीं, सभी मुतहरिक हुए। ये क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा काम हो चुका है या हम सेटिस्फाई हैं और इसके बाद कुछ नहीं करना है, पॉसिबल ही नहीं है। काम अभी शुरू हुआ है, काम करना बाकी है। यहाँ पे हम आपने कहने का मतलब है आपने राह पकड़ी, अभी मंजिल दूर है। अरे बहुत दूर है, ये वक्फ है, यहाँ जितना भी काम किया जाए उतना कम है। ये हमारा असासा है, ये बुजुर्गे दीन का असासा है, ये हमारे अवलियाओं का असासा है। यहाँ पे जितना काम किया जाए उतना कम है, और रात दिन हम मेहनत करें तब भी कम। एक जो हमारे दुकानदार हजरात हैं जिनके पास वक्त की प्रॉपर्टी है, नाला रहे कई अरसे तक, उस मसले को कैसे हैंडल किया? फिलहाल के लिए क्या अपडेट है उसमें? नाला क्यों ना हो ये सारी दुनिया, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है। जो 5 रुपए किराया देता था, जो 50 रुपया किराया देता था, जो 500 रुपया किराया देता था 70-80 सालों से, और प्रॉपर्टी 500 करोड़ों की उनके कब्जे में है। सी लाल चौक। हम तो अभी तक, जब तक हम वक्फ में आए तब तक हम समझते थे ये जो वो औकाफ मार्केट जिसको आप आम फहम जबान में कहते हैं, हमें तो ये इल्म तक नहीं था कि वो हमारा मार्केट है, वो हमारे वक्फ का असासा है। वो वक्फ का असासा 500 रुपए के छोटे से मामूली 100 साल हो गए हैं उनको बैठे हुए, 70 साल हो गए हैं, उसका लीज कभी किसी ने नहीं देखा आज तक। हमें बताइए किसने उनको लीज किया है, किसने उसको वो प्रॉपर्टी दी है। आज जब हमने कहा कि इसको, इस प्रॉपर्टी को लीगली जिसको आप देते हैं उनको हमें प्रीमियम लेना है, प्रीमियम कि आपको पहले उसका 75% वक्फ को देना है, तब हम आपको कोई प्रॉपर्टी दे देंगे। और उसके बाद हमने एक किराया फिक्स करा। आप देखिए हमारा एक होटल है, आपको मैं आपके जरिए से लोगों को बताना चाहती हूँ, उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिनके जहन में जहर है। हमारा बुलवाड़ पे एक होटल है जिसको दुकानें हैं, फिर एक शख्स ने उस पे सिटे लाया था 10-15 साल। यहाँ जितने भी चेयरपर्सन्स रहे हैं, जितने भी मिनिस्टर रहे हैं, जितने भी सीईओज रहे हैं, उन्होंने उन सिटीज को आगे बढ़ाया। मुसद्दिक शाह नामी एक बंदा है जिन्होंने उसको लीज पे लिया था। अब उन्होंने लिया होगा उस टाइम पे पैसा, मैं बताना चाहूंगी, लोगों को पता होना चाहिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने, जब हमने यहाँ पे कदम रखा तो पहली बोर्ड मीटिंग में ये सवाल आया कि हमें बुलवाड़ में एक होटल है, तो उसको हमें, जब हम खुद देखने गए तो हमें लगा ये वीरा है, सारा खत्म हो गया है। तो हमने कहा कुछ पैसा आता है, कहा ये 30-35 साल से तो खंडर बना हुआ है। एक मुसद्दिक शाह नामी बंदे ने
ये होटल लिया था, तो फिर कोई यूसुफ शाह साहब नामी यहाँ पे सीईओ कुछ रहा है, तो उन्होंने उसको सील कर दिया है आफ्टर 5 years। वो गए कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे लिया, 15 साल वो रहा विदाउट एनी पेनी ऑफ जो क्योंकि वक्फ चलेगा कैसे, पैसे से चलेगा। ये हम एक छोटी सी मिसाल देंगे जो बड़ी मिसाल है आज की डेट में। फिर हमें अभी ज्यादा वक्फ के बारे में मालूम भी, 6 साल हम रहे थे वहां पे, उसके बाद हमने उसका ऑक्शन कर दिया। इन्होंने कोर्ट से स्टे इसको हटा दिया। उस बंदे से आज तक हम नहीं मिले हैं, लेकिन उस बंदे का भी बिजनेस चला, वक्फ को भी किराया आना शुरू हो गया। और फिर जो उसके कुछ 50 है या 60 कमरे ऊपर, हम गए नहीं है कभी, 50 है या 60 कमरे हैं ऊपर, तो वो हमने फिर लीज आउट किया, ऑक्शन आउट किया। फिर जो पार्टी उसमें आ गई, उन्होंने हमें उस वक्त जो ऑक्शन में लगभग उसमें हमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया उसी टाइम पे आया, अभी भी किराया आ रहा है। ये देखिए कि ये हमारी पहली मीटिंग थी। बिलवाड़ में एक ऐसी प्रॉपर्टी है और जो आप ये भी जानिए, जो आपने दुकानों, बिलवाड़ उसी होटल के नीचे लगभग 120 दुकानें हैं हमारी। वो जनाबे आली 500 रुपया देते थे और 100 सालों से वो वहां पे बैठे हैं जब से होटल बना है। हमारे इन पॉलिटिशियंस ने या उस हुकूमत ने उनको बिना किसी लीज के, बिना किसी एग्रीमेंट के, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंटें रही हैं, जो भी यहाँ सीईओज रहे हैं, जो भी यहाँ पे ऑफिशियल्स रहे, बिना किसी एग्रीमेंट के वो दुकानें दी है। और आज तक हम उसको कुछ नहीं कर पाए और उसकी तरफ सरकार को नजर कभी नहीं पड़ी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, बताना चाहूंगी लोगों को, और ऑनरेबल जुडिशरी की मैं बहुत ही आपके जरिए से मतलब शुक्रगुजार हूं। उन्होंने पहली दफा वक्फ के साथ इंसाफ किया और उस होटल के नीचे जितने 120 दुकानें हैं वो गए थे सिटे लाने के लिए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में कहा कि 2 घंटे में ये किराया दे दे, वरना वक्फ इन दुकानों को सील करे। और उस दिन में हमें 30 लाख 2 घंटे में आ गया है किराया। कि अगर वक्फ काम करता तो जो हमारे खजाने होते कहीं ना कहीं पे, आज हमारा 2000 करोड़ होता, जैसे माता वैष्णव देवी जी का खजाना भरा हुआ है, वैसे ही वक्फ का खजाना भी होता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से हमने अगर किसी को दुकान रेंट पे दिया है, हमने नए सिरे से कोई भी छापड़ी दी है, हमने बाज़ाब्ता एक प्रीमियम लिया है, बाज़ाब्ता एक रेंट डीड करी हुई है, जिससे वक्फ को फायदा हो और वक्फ का असासा वक्फ के पास रहे। हमारे पास लैंड है, इतना लैंड है कि हम चाहें तो हम गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं पैसा, लेकिन अगर हम प्रॉपरली उसमें प्रीमियम ले, लीज पे दे, लोगों ने कब्जा करके रखा है। हम आपको बर्थना की बात बता दे, पीछे हम वहां पे गए, आप लोगों, ये मैं लोगों के लिए इसलिए बोलना चाहती हूँ ताकि आंखें खुल जाएं। वहां आप हमारा चेक कर सकते हैं, पिछले सरकारों ने वो बर्थना के 180 कनाल 200 रुपए पे लोगों को दिए हैं। और अभी जब से वो जमीन है उन्हीं लोगों के पास है और उसकी तरफ सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की किसी की नजर नहीं गई है, क्योंकि वो उनके अपने कार्यकर्ता है। आपके कहने के मुताबिक वक्फ सियासी नजर हो गया था। कहने के मुताबिक ये सारे ही कहते हैं। अभी जब हम देख रहे हैं, ये बर्थना की लैंड है, आप कल टीम लेके जाइए और वहां पे देखिए, सर्वे करिए। आपने अभी माता वैष्णो देवी की बात की है, वहां उनके यहाँ एक यूनिवर्सिटी भी चलती है। क्या दरख्शा इंदिराबी जी ऐसे कभी हमारे यहाँ भी होगा कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर जो वक्फ बोर्ड है वो जम्मू कश्मीर रीजन में भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए सोच रही है? अफसोस की बात है कि आपको ये मालूम होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी है IUST यूनिवर्सिटी वक्फ की है। 250 कनाल जमीन मंतकी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पैसे से खरीदी गई जमीन 250 कनाल वक्फ की लैंड है। उस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वक्फ ने बनाया था। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर
अल्लाह उनको मगफिरत करे, उन्होंने यूनिवर्सिटी को दिया और वक्फ का नाम कहीं नहीं है। और 10-12 करोड़ रुपया उस वक्त लिया गया है, बट वक्फ कहीं नाम में नहीं है। आज आप माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी जो 250 कनाल हमारा है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम मानते हैं यूनिवर्सिटी चल रही है, लेकिन क्या उस सरकार का, उस चीफ मिनिस्टर का ये हक नहीं बनता था कि इसमें वक्फ का नाम और मंतकी साहब का नाम शामिल हो और दुनिया को दुनिया ये जान पाता कि वो यूनिवर्सिटी वक्फ की है, और है भी। जम्मू कश्मीर अवाम, जिस तरह से आप श्रीनगर को देखते हो, हमारा बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, क्या उन तक इसकी रसाई पहुंचेगी कि छोटे छोटे कैंपस वहां पे भी हो और जमीनी सतह पे अवाम औकाफ वक्फ को जो पैसा अदा करती है न्याज नजर के जरिए में, जिस भी नजरिए में, क्या वो वापस पहुंचेगा उन तक? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले जो वक्फ हुआ करता था, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। वक्फ के लोग, हमारे सारे लोग यहाँ पे, जैसे चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, वो अपनी फंड्स में दरगाहों में पैसे लगाते थे। वक्फ का ये कभी कानून ही नहीं रहा है कि इन्होंने खुद अपने पैसे से कुछ बनाया हो। वक्फ का पैसा कहाँ जाता है वो उन लोगों से पूछा जाएगा, मुझे उसका इल्म नहीं है। मुझे इतना इल्म है कि यहाँ के लोगों को, ये जो हमारे अभी मुलाजमीन, इंजीनियरिंग विंग सारे सुनेंगे ये इंटरव्यू, तो उनको भी ये पता ही नहीं है हमें काम करना है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो काम हुआ करता था वो थ्रू सरकारी ही होता था और सरकार ही करवाती थी जब उनको काम करना होता था, जो भी बिल्डिंग बनानी जाती थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो कल्चर नहीं था। जब हम आए तो हमने यहाँ के लोगों को बता दिया ये काम करना है, हमारे पास पैसा, हालांकि पैसे की किल्लत काफी रही, यहाँ पे खजाने में पैसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे तुरा ये था कि जो हमें गोल्ड भी आता है, लोगों को पता होना चाहिए। आज मैं खुल के, आपने कहा खुल के बात करेंगे तो खुल के ही बात करेंगे। हमारे पास जो गोल्ड है मैंने देखा नहीं है, तो जो रिकॉर्ड है हमारे पास, तो हमारा ये मकसद है उस गोल्ड के बार्स बनाए जाए, जैसे माता वैष्णो देवी दरबार में है कि उनके पास अपना गोल्ड है। जैसे आपने पंजाब में देखा है दरबार साहब में गोल्ड है, तो गोल्ड से ही जड़ा हुआ सारा वो उनका दरबार साहब वहां पर है। तो हम भी चाहते थे कि हमने जब बात की बोर्ड में, मीटिंग में अपने बोर्ड मेंबर्स से, तो हमने बता दिया, तो लेकिन तब क्या था, हमसे पहले ये हुआ था डिसाइड कि अब हम इसी गोल्ड को, यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया था, इसको हम लोन पे ले लेंगे, क्योंकि मुलाजिमों की तनख्वाह नहीं थी। जब हम यहाँ पे आए कि वो बातें चल रही थी, शादरा शरीफ से पैसे लाए जाएंगे कि यहाँ के मुलाजिमों की तनख्वाहें नहीं थी, तो आप डेवलपमेंट की कहाँ बात करते। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह हम आए तो हमने देखा कि बहुत ये है, तो रब ने हमें रहमत अदा कर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत वो मानो कि इज्जत दी और साथ दिया। हमने जो वो फैसले लिए इन दरगाहों में कि जो कहीं से भी कुछ भी गलत हो रहा है उसको हमने रोकने की कोशिश की, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पैसा आने लगा। हमारे 13 स्कूल चल रहे हैं, तो उनमें क्या है, वो नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस की बात ही नहीं। अगर कोई टीचर लगा हुआ है, उस जमाने में उसको परमानेंट करा गया है, तब स्कूल चला है 100 रुपए पे, तो तब तनख्वाह भी 3000 की हुई होगी या 2000 की हुई होगी। तो टीचर बढ़ते गए, उनकी तनख्वाहें बढ़ती गई, स्कूल में रोल कम होता गया और स्कूल लॉस में चला गया, स्कूल लॉस में चला गया। और जब हमने देखा कि हमारे 16 स्कूल चल रहे हैं और पैसा 30 करोड़ का हमें घाटा है, लोगों को पता होना चाहिए लफ्ज वक्फ जो दरगाहों से पैसा आता है, जो वाकई चीज, ये जाता कहाँ है। अगर स्कूल बनाए हैं उसमें क्या वो चीजें, स्कूल में जो मुलाजिम लगे हैं ये उनके घरों में जाता है। अब स्कूल का रोल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है ये किसी को फिक्र नहीं। स्कूल में टीचर्स थे 30 साल से लगे हुए हैं। जब हम सुनते हैं आप कितने साल से लगे हैं, 35 साल से, कितनी सर्विस कब लगे हैं। मतलब हमें मकसद है, कोई कुछ नहीं, स्ट्रीमलाइन कहीं पे भी नहीं था, बिल्कुल नहीं। अब जब हमने कोशिश की
तब तुरा आपने देखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जिन पॉलिटिशियनों ने पहले क्योंकि उनको भी पूरा पता नहीं था, इल्म नहीं था, आज आपने खुल के पूछा सवाल, हमने आज खुल के, ताकि आवाम को पता हो अंधेरे में बात रखने की जरूरत नहीं है। आप बात बताओ जो 16 आना सही हो, लोगों को मालूम होना चाहिए वक्फ में ये असासा, ये जमीन यहाँ पे है, ये इसके कब्जे में है। दरख्शान के वक्त में ये लीज हुआ, ये ऑक्शन हुआ और इस ऑक्शन से इतना पैसा हुआ। और अगर हमने कहीं पे लीज के, यही होटल की हम बात करेंगे, और इस होटल को अभी किराया आना शुरू हो गया। अभी हम ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि इसमें सरकार की बड़ी वो रहती है, सरकार को बेचना है। फिर आपने अगर 10 लोग आपके ऑक्शन में आए, आपने, क्योंकि इनको पता है वही चलेगा, जैसे कोई किसी को जानता है उसको देना है। यहाँ तो वो बात है नहीं, जो ऑक्शन में आएगा जो भी है, आज क्लियर और क्रिस्टल तरीके से काम हो रहा है। किसी की सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं है, बट वक्फ की सिफारिश है वक्फ के लिए, क्योंकि ये अवलियाओं की अमानत है, अल्लाह और रसूल की अमानत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें कोई खयानत ना हो, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से ही वक्फ को बढ़ावा देंगे। मैं आपको ज़ियारत शरीफ की बात करूंगा। कुफवारा में ही शाही वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत है। 2-3 दिन पहले तकरीबन 23 तारीख से 25 तारीख वहाँ एक मेला भी रहा। वहाँ मैं खुद गया था, मैंने बहुत सारी कमियां पाई वहाँ पे। वहाँ वॉशरूम्स का भी मसला है, वहाँ लोगों ज़ायरीन के बैठने के लिए भी मसला है। उस पर क्या कोई वहाँ से कोई टीम आई जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है, उससे कभी बात हुई कि किस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हो? देखिए, यही तो रहा है, ये तो गम है। 75 साल हो गए हमें भी आजाद हुए और 75 सालों पहले भी ये दरगाहें थी। और अगर 70 साल हो गए अब यहाँ पे भी वक्त बने हुए, कि मेरी ही टाइम पे मुझे ही सारा कुछ क्यों करना पड़ा? ये सवाल है, अलमिया है, मैं अपने लोगों से कहना चाहूँ। ये 2 सालों में मेरे ही कांधों पे ये सारा कुछ आ गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लोगों ने, मेरे मीडिया ने, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने और मेरे अल्लाह ने मुझे साथ दे दिया। दरगाह हजरत बल साहब से शुरू काम किया मुकदुम साहब तक, कहीं पे भी वजू खाना नहीं था। लोग सुन रहे हैं, आवाम को सब पता है। आप किसी भी दरगाह पे जाइए, जैसे आपने ये किया, अब जहां जहां अभी नहीं पहुंची हूं तो वहां वहां वही रोना है। 2 साल में आप, पहले आपको 6 महीने लगे, मुझे पहले ऑफिस नहीं था बैठने के लिए, लोग तो सेक्रेटेरिएटों से काम कर रहे थे, मुझे वो भी नहीं मिला। मुझे अपने घर से 8-9 महीने ऑफिस चलाना पड़ा और जगह ढूंढती तो कहाँ था, ये बनाना पड़ा, ये ऑफिस बनाना पड़ा। उसके बाद जगह जगह जाके पहले वही जो ऋषियों को उठाया, वहां फिर पेटियों को देखना पड़ा, कुछ आया, कुछ बनाऊं। देखिए, दरगाह में जब आमदनी हो, हमें सरकार से कोई फंड नहीं मिलता है। आपकी जमीनें वही जो हमारे पास जमीनें पड़ी हुई हैं, लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है आपको, क्योंकि वो आपके वर्कर ने ली हुई है। जब मैंने लीज करना शुरू कर दिया, मैंने कहा इसका लीज करते हैं, इसका लीज करते हैं, ये कर लेते हैं, क्योंकि इसका एक किराया आएगा, तब आपको तकलीफ हुई, तब आपने शोर मचा दिया, तब आपने वाहवेला किया कि दरख्शां अंद्राबी ने ये किया। क्योंकि दरख्शां अंद्राबी चाहती है वक्फ बोर्ड भी एक फॉल डिपार्टमेंट बने। आपने हंगामा शुरू कर दिया। आप एक तरफ से कहते हैं कि वक्फ चलना चाहिए, ये माता वैष्णव देवी की तरह चलना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वक्फ का जो भी जिस जगह पे जमीन है वो वैसी की वैसी रहे, कल को उसको और कोई कब्जा करे। आज तक 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 सालों से कब्जे किए हुए लोग, उस पर आपको कोई तकलीफ नहीं है। दुकान, उस पर आपको कोई तकलीफ नहीं है, 5 रुपए पे बैठ। जब दरख्शां अंद्राबी ने उसको लीज पे दिया, नए सिरे से उसको किया, आपको तकलीफ हो रही। ये है अलमिया, ये है अलमिया आज की दुनिया का, कि कोई काम कर, ये झूठ है सारा। मैं आपको कहना चाहूंगी ये गलत है, ये जो कह रहे हैं ना कुछ मगरमच्छ के आंसू, नहीं जी वो वहां पे माता वैष्णव देवी जी की तरह चलना चाहिए, अंदर से यहाँ पे कोई नहीं चाहता। आपका ये कहना कि जो भी सियासी जमात रही यहाँ पे, अपने अपने दौर में हर ने अपनी मिठास पाई और खट्टा खट्टा हमारे लिए छोड़ा। आज भी हम आपने कहा आपका सियासी करियर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस जमात से हम रखते हैं ताल्लुक,
वहाँ की तरफ से ये कोई गलती हमसे नहीं कराई गई कि आपको ये चीज गलत करनी है। हमारी टाइम पे एक भी यहाँ पे मुलाजिम अभी नहीं हुआ। अदरवाइज यहाँ पे तो जो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे हैं, यहाँ पे एक पॉलिटिशियन रहा है, पता नहीं कितनी देर वो वाइस चेयरमैन रहा है, 128 लोग उसने लगाए हैं। यहाँ पे अभी जो हमारे आने से पहले सीओ एज रहा है, उसने 132 आदमी यहाँ पे लगा रखे हैं। सीओ जिसको पावर ही नहीं, बोर्ड का पावर नहीं है उनके पास, उन्होंने 132 आदमी यहाँ पे लगा के रखे। और जो जो आपको लगा है, एक वाइस चेयरमैन है, उन्होंने 128 करेंगे, तो आप क्या करेंगे? हसना पे बात करते हैं, वक्फ कितना कर्ज हसना भी बाहर है, क्या उस पर कोई कंक्लूजन है? जितना आपने दिया है उतना बाहर ही है, कागज कोई आपके सामने नहीं है। आपने बड़े बड़े लोगों को कर्जे हसना दिया है, गरीब का घर ना, गरीब के घर का चिराग जला है ना, तो आपने कभी गरीब को दिया है। तो आपने वो कागज ही नहीं रखे हैं, वो फाइलें ही नहीं रखी हैं, तो हम ढूंढे तो ढूंढेगा क्या? उसके पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं है जितने करोड़ों रुपए? देखिए, लोगों के जहन से हम सुनते हैं, लोगों के पास जब हमने ढूंढना यहाँ पे शुरू कर दिया तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। हमने भी सोचा कि हम जरा वो कर्जे हंसना जैसे बड़े लोगों के घरों में गया है, किसी के 8 लाख गया है, किसी के 10 लाख गया है, किसी के 20 लाख गया है, किसी के कुछ भी लाखों में गया है, तो लेकिन वो रिकॉर्ड यहाँ नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक जानिसार है जो वक्फ का कहीं रहा है, उन्होंने हमें वो रिकॉर्ड अभी फराहम करने की जो हमें मिल रहा है, वो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखा जाएगा। मैम, बड़ी बेबाकी के साथ आज आपने बात की वक्त के बारे में, मैं इसको यहीं पे मुख्तसर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक दूसरा प्रोग्राम भी रखेंगे जिसमें बिलतरतीब आगे वाले काम में आप अच्छी तरह बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमदानी साहब। ये थे रक्षा इंद्राबी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ उन तमाम चीजों पे बात किया जो अवामी सतह पे, जहाँ पे कहीं ना कहीं पे आवाम सोचती है इन तमाम चीजों के लिए। जब किसी शख्स को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है वहां पे, वो जरूरी है अवामी सतह पे आए। और जिस तरह से आज वक्त काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पे अवामी पजीराई के साथ काम कर रहा है। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। केएनएस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरख्शा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।